This is the seal of the Prophet Muhammad. We know he had a seal, ring. جن پر مہر لگانے کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی تیار کی گئی جس پر 3 الفاظ درج تھے. سب سے اوپر والی لائن میں اللہ اور دوسری لائن میں رسول اور تیسری لائن میں لفظ محمد لکھا گیا تھا. السلام علیکم ناظرین حضرات، میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو توجہ سے سنو گے اور اپنی رائے ضرور نیچے کمنٹ میں پیش کرو گے، اور ویڈیو کو اتنا شیئر کرو گے کہ جس موضوع پہ یا جس کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ان حضرات تک پہنچنی چاہیے. تو آئیے ہم سیدھے موضوع کی طرف آتے ہیں. یہاں پہ جو آپ کے سامنے یہ تصویر نظر آ رہی ہے، اس پہ لکھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لکھا ہوا خط. اس کے بعد یہ خط لکھا ہوا ہے عربی، 1400 سال پہلے کی عربی ہے. یہ میرے پڑھنے کی بس کی بات نہیں ہے. اس کے بعد نیچے یہاں پہ جو ریڈ مارک لگا ہوا ہے، آگے لکھا ہوا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر، اور مہر کی جگہ لکھا ہوا ہے اللہ رسول محمد. اور اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا ہر مسلمان لائک اور شیئر کرے گا. یہاں تک بات مکمل ہوگی اور آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ گیا. اس میں میرے بھائی یہاں پہ ایک خاص توجہ رکھنی کہ یہ جیسا میں نے یہاں پہ آپ کو شو کر رہا ہوں ویسا ہی میں نے سیو کیا تھا. اس میں میں نے ایک پوائنٹ کا رد عمل نہیں کیا. اب بات اس طریقے سے ہے کہ اس کو میں نے فیس بک سے سیو کیا اور میں نے اپنے واٹس ایپ پہ ڈال دیا سٹیٹس پہ. جب میں نے سٹیٹس پہ ڈالا تو میرے ایک جگری دوست، قریبی دوست کا مجھے میسیج آ گیا، اور وہ میسیج یہ ہے، دیکھو آپ کے سامنے. یہاں پہ لکھتے ہیں جناب کہ جناب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا لکھا ہوا کوئی خط نہیں ہے. پہلے تو دیکھ لیا کرو، پھر لوگوں کو بتایا کرو. آپ نے بریلوی عالم سے پوچھ لینا اگر یقین نہیں آتا تو. انہوں نے جو اعتراض کیا یہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کیا لکھا اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے ہاتھوں سے لکھا، یعنی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہینڈ رائٹنگ اس خط پہ نہیں کی ہوئی ہے. پھر لوگوں کو پہلے دیکھ لیا کرو، پھر لوگوں کو بتایا کرو. یہاں پہ دیکھو اس کا جھوٹ کہ پہلے دیکھ لیا کرو پھر لوگوں کو بتایا کرو. حالانکہ میں نے بتایا کسی کو نہیں تھا اور اس کے بارے میں نے کچھ نہیں کیا. میں نے جیسا لیا تھا فیس بک سے ویسا ہی میں نے سٹیٹس پہ رکھ دیا. اپنے بریلوی علماء سے پوچھ لینا اگر یقین نہیں آتا. مجھے اس بارے میں یقین آتا ہے یا نہیں آتا ہے، یا میرا اس پہ کیا خیال ہے، کیا رد و عمل ہے، یا میں اس کو کس اینگل سے سمجھتا ہوں، یا میں کیا کرتا ہوں، وہ میرا ذاتی معاملہ ہے. کسی کی سوچ پہ کسی کا حکم نہیں ہوتا. لیکن یہ میرے بھائی صاحب میرے پیچھے پڑ گئے کہ آپ نے یہ سٹیٹس کیوں لگایا، یعنی یہ جرم ہے، یعنی یہ گناہ ہے. آگے چلتے جائیے. اس کے بعد میں نے ایک 3 منٹ اور 36 سیکنڈ کی ویڈیو بنائی ہے. وہ میں آپ کو یہاں پہ سنا نہیں سکتا کیونکہ ٹائم کی قلت ہے. میں آپ کو اس ویڈیو کا بھی حالہ سنا دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد میں نے اس کو لکھا تھا کہ یہ میرا آنسر ہے، اور میں نے یہ جو ابھی بات آپ کو کہی کہ اس حضرت نے بولا کہ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا ہے، لہٰذا یہ جھوٹ ہے. آپ لوگوں کو جھوٹ بولتے ہو، آپ لوگوں کو غلط خبریں دیتے ہو. یہاں تک تو ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے اس کو لکھا کہ دس از آنسر آف مائی اسٹیٹس. یہ جو میں نے 3 منٹ اور 36 سیکنڈ کی ویڈیو بنائی، یہ میں نے بولا میں نے آپ کو جواب دیا ہے. صحت کا خیال کرا کر دوست. میں نے بولا کہ اپنی صحت کا خیال رکھا کر، کیونکہ قدرتی بات ہے جب بندے کا دماغ ٹینشن میں ہو یا کچھ بھی ہو تو بندے سے باتیں ادھر ادھر کی نکل جاتی ہیں. اس کے بعد انہوں نے جو پہلی 25 سیکنڈ کی ریکارڈنگ کی وہ آپ سنیں اور اس کے بعد پھر تبصرہ کرتے ہیں. بھائی اتنے لمبے چوڑے میں کائے کو جا رہے ہو، الٹی پلٹی باتیں کائے کو کر رہے ہو. آپ اگر 1000 آدمی کے سامنے خط کو لے کر رکھو گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے، آپ نے سٹیٹس پر ڈالا ہے کوئی ساتھ میں لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا لکھا ہوا خط ہے، تو آپ سے پوچھیں گے نا نہیں ہے لکھا ہوا، کیوں جھوٹ بول رہے ہو. میں نے تو بڑے احترام سے پوچھا ہے. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہو. میں نے کہا کہ آپ کنفرم کر لیا کرو پہلے کہ ہاتھوں کا لکھا ہوا خط ہی نہیں ہے. اچھا میرے بھائی، جو میں نے سٹیٹس ڈالی تھی، میں نے اس سٹیٹس میں اپنی طرف سے کوئی ایک پوائنٹ بھی اس خط میں بڑھاوے کے لیے یا گھٹاوے کے لیے میں نے کچھ نہیں لکھا تھا. اور اس کے بعد آپ نے بڑے آرام سے بول دیا کہ کیوں جھوٹ بول رہے ہو آپ.
ये ख़त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों मसनू कर रहे हो, ये तो उन्होंने लिखा हुआ नहीं है। और उसके बाद रिकॉर्डिंग के आखिर में बोलते हैं कि मैंने बड़े एहतराम से कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हो। हालांकि पीछे 3 सेकंड पहले इसने खुद दावा कर दिया कि आप झूठ बोलते हो। आगे चलते जाइए, 21 सेकंड की रिकॉर्डिंग सुनिए। तो पूछे क्यों ना जनाब, आपने स्टेटस पे डाला है, पब्लिक में डाला है, स्टेटस पे डाला है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात को मनसूख कर रहे हो, तो आपसे पूछा जाएगा ना कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मनसूख नहीं हो रहा है, खत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा हुआ नहीं है। तो फिर आपसे पूछा तो जाएगा ना कि आप कंफर्म कर लिया करो, अगर लिखा हुआ है तो आप कंफर्म करके बताओ कि लिखा हुआ है। आप ये जो 21 सेकंड की है, इसमें ये हजरत बोल रहे हैं कि आपको क्यों नहीं पूछा जाएगा। हम क्यों नहीं पूछ सकते, आपने स्टेटस पे डाला है तो हम क्यों नहीं पूछ सकते। इसका जवाब मैं इसको यही देना चाहता हूँ कि मुझे आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि ना ही मैंने अपना ज़ाती मवाद पेश किया है, ना ही मैंने कोई इसमें बढ़ा चढ़ा कर कुछ लिखा है, ना ही मैंने स्टेटस पे डालने के पहले लिखा है कि आप इसको कैसा समझो या कैसा ना समझो। वो दूसरी बात फिर वहीं आई कि हर अपनी सोच है और सोशल मीडिया किसी की जागीर तो है नहीं कि किसको क्या शेयर करना चाहिए, किसको क्या अपलोड करना चाहिए, ये अपने बंदों पे डिपेंड करता है। हालांकि हाँ, एक बात ज़रूर है, अगर मैंने ये ख़त ज़ाती तौर पर या अपनी तरफ से कोई बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसनूख की है या ये बात बोल रहा हूँ या मैंने कोई स्टेटस रखी है तो मैं जुर्मदार हूँ, मैं सज़ावार हूँ, मुझे सज़ा दी जाए। हालांकि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये बंदा मुझ पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये ख़त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा हुआ नहीं है, ये नहीं है। मैंने हालांकि वो बात देखकर नहीं लगाई थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा हुआ ख़त है या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा हुआ ख़त नहीं है। मैंने जो इस पर आपको वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको पढ़ कर सुना दिया, वही मैंने देखा था, मैंने वीडियो पे अपलोड इस पर व्हाट्सएप पे अपलोड कर दिया था। लिहाजा इसने फिर यहाँ पे 21 सेकंड की वीडियो में बोला कि आपने इस ख़त को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगा दिया कि ये उनका लिखा हुआ है। हालांकि मैं हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ, मैंने ऐसा ना अभी तक वीडियो में कहा, ना मैंने स्टेटस पर लगाने से पहले कहा कि हाँ, आई एम गारंटेड दिस लेटर इज़ रिटन बाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब 16 सेकंड की रिकॉर्डिंग भी सुनो। आप हो चाहे कोई और हो, कोई भी आदमी अगर व्हाट्सएप पर स्टेटस डालेगा और वहाँ बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब करेगा, तो वो अगर बात शक वाली होगी तो हम उससे पूछेंगे ना, भाई ये शक वाली बात है, इसको पहले दुरुस्त कर लो आप। अच्छा, यहाँ पे इसने बोला कि कोई भी हो अगर स्टेटस डालेगा तो हम पूछ सकते हैं। भाई मैं वही बोल रहा हूँ कि पूछ उससे सकते हो जो कि अपने ज़ाती स्टेटस डालेगा। जिसका भी सोशल मीडिया पे ज़ाती स्टेटस नहीं होगा, आप उस स्टेटस को चेक करो, उसकी छानबीन करो। अल्लाह पाक ने आपको दिमाग दिया हुआ है, अल्लाह पाक ने आपको अक्ल दी हुई है, अल्लाह पाक ने आपको सोच दी हुई है। आप जानकारी लो, छानबीन करो, उसके बाद किसी पे तनकीद करो या कुछ भी बोलो उसको, या उसका कोई ज़ाती है या उसने कुछ लफ्ज़ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से लगा कर लिखें तो आप उस पर तनकीद करते अच्छे लगते हैं। और खुदा न खास्ता अगर ये ख़त नहीं फेक भी है तो तब भी इसका ये मुनासिब नहीं बनता था कि जो इन्होंने ये लिखा है कि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों का लिखा हुआ कोई ख़त नहीं है। पहले तो देख कर लिया करो, फिर लोगों को बताया करो। अपने बरेलवी अलमा से पूछ लेना अगर यकीन नहीं आता। इन्होंने फिर यही बात बोली और इसका मतलब ये है कि ये इस बात पे पूरे ग्रंटेड हैं कि इस ख़त का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो उसके बाद ये लिखते हैं कि एक तो आपने झूठ बोला, ऊपर से मुझे गालियाँ देते हैं, ये बात ठीक नहीं है। अच्छा, आप यहाँ खुद फैसला कर दीजिएगा कि जितनी मेरी ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है इसमें मेरा कोई बुरा लफ्ज़ या मेरा कोई झूठ या मेरी कोई गाली साबित कर दीजिएगा तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। हालांकि जो इसने बोला कि आपने तो एक झूठ बोला, हालांकि झूठ इसने मुझ पे बोला 21 सेकंड की रिकॉर्डिंग में कि आप ये ख़त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनसूख कर रहे हो, यानी ये उन्हों का लिखा हुआ आपका ये दावा है। हालांकि मैंने ऐसा कोई दावा लिखा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं। अल्लाह बेहतर जाने इस शख्स के दिमाग में
क्या हुआ, पता नहीं जाता दौर कोरोना का है या आता दौर कोरोना का है, वल्लाह आलम। तो उन्होंने ये बात मुझे बोला कि वो मुझे गाली देते हैं, ठीक नहीं है। हालांकि जो कुछ आपके सामने आ रहा है इतना ही है, ना इसमें कोई गाली है ना कुछ। 25 सेकंड की और 21 सेकंड की 16 सेकंड की रिकॉर्डिंग है, आपके सामने मैंने इन तीनों रिकॉर्डिंग का मैंने इसको जवाब दिया। अब यहाँ पे एक मेरे भाई, मैं आपको बात बोलना चाहता हूँ इसी ख़त के लिहाज से कि ख़त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है, लेकिन एक बात मैं अपनी गारंटी से कहता हूँ और आपने होश व हवास में कहता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक़्त में ख़त अपनी मौजूदगी में और आपने जो जो कहा वो लिखा गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में 8 या 10 मुल्कों को ख़त लिखकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भेजे गए हैं। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। इसका मतलब कि ख़त ज़रूर 100% हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मसनूक किए जाते हैं कि क्योंकि ये ख़त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के बगैर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने के बगैर और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टैम्प के बगैर ये ख़त शायद ना कोई हो सकता है और ना किसी की ताकत है कि वो ऐसे शाया कर दे। उसके बारे में भी जो ये इसने अपनी ज़ुबान से अभी तक बोला है 25 सेकंड की, 21 सेकंड की और 16 सेकंड की में सिर्फ अपनी ज़ुबान से बोला है, तो इस पे ध्यान किया जाएगा। और जो मैं आगे जो मैंने अभी यह बात बताई कि ख़त मसनूख हो सकते हैं, ख़त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लिखे गए थे, उनकी मौजूदगी में लिखे गए थे। और यहाँ तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ख़त बताया था, अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों का वो ख़त नहीं है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्लाह, मोहम्मद और रसूल की जो मोहर लगी हुई है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चांदी की अंगूठी थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली में रहती थी। और ऐसा भी तो नहीं है कि वक़्त का बादशाह हो और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर हो और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ माज़अल्लाह किसी मुल्क में ख़त भेजा जाए या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अंगूठी के अलावा, ये नामुमकिन सी बात है। और वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, आपका ज़्यादा कीमती वक्त ना लेते हुए अभी मैं आपको, जैसे इस मेरे भाई ने 3 रिकॉर्डिंग में अपना पूरा सब कुछ जाहिर कर दिया बगैर किसी दलील के, बगैर किसी हवाले के, और यूट्यूब पे देख देख के दूसरों पे चिढ़ करना या दूसरों को बुरा भला कहना, ये भी एक इंसान के लिए मुनासिब नहीं है। वो इंसान नहीं माना जाता है। अब इन बातों को ये गालियां समझ लेगा तो वो इसकी अपनी मर्जी है। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोली कि जिसके इस मेरे भाई का दिल दुखे, लेकिन ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इसको समझ भी नहीं आएगी ये बातें जो मैं कह रहा हूँ। लिहाजा जिस वक़्त इस्लाम समझने का टाइम था, जिस वक़्त इस्लाम सीखने का टाइम था या जिस वक़्त इस्लाम की जानकारी लेने का टाइम था, उस वक़्त ये मेरा भाई कभी माल मवेशी के पीछे इसने ज़िंदगी सरफ कर दी। तो अब मेरे भाई को समझ आया यूट्यूब देख देख कर, तो आप वो बोल रहे हैं कि माज़अल्लाह ये ख़त झूठे हैं, ये ख़त फ्रॉड हैं, ये ख़त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसनूख नहीं किए जाते, ये ऐसे ख़त हैं, आप झूठ बोलते हो। देखो कितना ये कज़ाब और कितना झूठी बातें कर रहा है। हालांकि ख़त 1400 साल पहले के मौजूद हैं और वो मैं हवाले के साथ और मैं दलील के साथ इंशाल्लाह यहाँ ही वीडियो में आपको आखिर में पेश करूँगा। आप खुद ही समझ लीजिएगा कि इन ख़तों का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना ताल्लुक़ हो सकता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस चीज़ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगाव हो जाता है वो चीज़ कैसे हो जाती है। ये तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये लिखा गया था ख़त, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चांदी की जो अंगूठी थी उसमें अल्लाह, रसूल और मोहम्मद लिखा हुआ था, उसकी बाकायदा इस ख़तों में मोहर लगी हुई है। लिहाजा जो भी कोई समझे, जो भी कोई कहेगा कि ये फ्रॉड है, ये ख़त ऐसे हैं, माज़अल्लाह, उसको फिर सोच समझ कर ये बात बोलनी चाहिए। हमारे इस भाई की तरह इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए कि सोचने लग गया कि मैंने 2 यूट्यूब पे फिल्में देख ली या यूट्यूब से मैंने वीडियो देख ली तो अफलातून हूँ। ऐसा भी कुछ नहीं है। आगे मेरे भाई ने अगर जो कुछ और पूछा मैं इसका जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ।
لہٰذا میری ویڈیو زیادہ لمبی ہوگی. اب میں جو ان خطوں کے متعلق کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور اس میں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. At the bottom here, this is the seal of the Prophet Muhammad. We know he had a seal, ring with his seal on it, and this was his official stamp of approval and authentication. I'll give you a closer look here. مختلف ممالک کے بادشاہوں اور مختلف قبائل کے سرداروں کے نام خطوط لکھے جن پر مہر لگانے کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی تیار کی گئی جس پر 3 الفاظ درج تھے. سب سے اوپر والی لائن میں اللہ اور دوسری لائن میں رسول اور تیسری لائن میں لفظ محمد لکھا گیا تھا.